My lovely students, welcome to Mathological. Let us start 5th decision making set from ZAT 24. So, Miss Vinita Lamba, a respected figure in the small town of Jampur, found herself stranded on the road once again when her old small hatchback car broke down. Jampur seems like Jamshedpur. Finding herself alone on the deserted road with no one to help, Vinita in desperation called Shyam Sagal, the general manager of Balaji Motors, the only dealership in Jampur that sells Diplomatico cars, the brand that Vinita drives. Vinita knew Shyam from her frequent visits for getting her hatchback car serviced. Surprisingly, he arrived within 15 minutes accompanied by a mechanic from his dealership. Further, he arranged for the vehicle to be towed and kindly offered Vinita a ride home. On the way back, he advised Vinita to exchange her old car with a new sport utility vehicle SUV on a good discount from his dealership. तो बिजनेस की बात सोच दी उसने, कर दी तुरंत. He assured her that he would add several additional services to ensure her SUV remained in excellent condition for many years ahead. So this is the case. First question. Due to her old car's frequent breakdowns, Vinita decided it was a time to replace it. तो विनीता ने मन बना लिया कि हाँ, इसको रिप्लेस तो करना है. She was afraid whether buying a Diplomatico SUV from Balaji Motors as suggested by Shyam will be a right decision for her. She was afraid whether buying a Diplomatico SUV from Balaji Motors as suggested by Shyam will be a right decision for her or not. So basically this is the question bothering her, कि whether buying a Diplomatico SUV from Balaji Motors as suggested by Shyam will be a right decision or not. So the question is, which of the following pieces of additional information will help her the most in taking the right decision? Which of the pieces given, which of the options given, which of the additional information given will help her the most in taking the right decision? Right decision क्या लेना है उसको? Decision ये लेना है whether to buy a Diplomatico SUV or not. ठीक है, that is the question. ठीक है, so question पे स्पेसिफिक रहोगे तो easily तुम आंसर को ऑप्ट आउट कर पाओगे. अब ध्यान से ऑप्शंस को देखो और ट्राई टू आंसर. Whether buying a Diplomatico SUV from Balaji Motors will be a right decision or not. First option, she has no idea which SUV to choose and she feels that all SUVs are the same. ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा इंडिसिजन बता रहा है, बिकॉज शी हैज नो आइडिया अबाउट एनी SUVs एज सच. ठीक है, सो शी कैन नॉट डिसाइड, बट अल्टीमेटली इफ शी हैज टू परचेज अ कार तो डिसाइड तो करना पड़ेगा, तो कुछ डायमेंशंस पे तो सोचना पड़ेगा. तो क्या पहला वाला स्टेटमेंट हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो जो रिक्वायर्ड है या जो हेल्प करेगा हर इन टेकिंग द राइट डिसीजन? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज शी हैज नो आइडिया व्हाटसएवर. तो पहले तो आइडिया लेना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट वन शुड नॉट बी द राइट आंसर, बिकॉज ये तो हेल्प नहीं कर पाएगा. इंडिसिजन था, इंडिसिजन है, इंडिसिजन रहेगा पहले स्टेटमेंट की वजह से. Second one, her brother, an SUV enthusiast staying in a metro city, has advised her to stay away from Diplomatico cars. Very important. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ो, देखो यहाँ पे एक SUV enthusiast है जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है. Her brother, SUV enthusiast staying in a metro city, has advised her to stay away from Diplomatico cars. स्पेसिफिकली बात कर रहा है उस ब्रांड के बारे में जिसके बारे में डिसीजन लेना है. कौन बात कर रहा है? जो बात कर रहा है, जो सोर्स है, दैट इज अ ट्रस्टेड सोर्स, रिलायबल सोर्स है. ठीक है, हमेशा जब सोर्स देखो तो एक बार ये जरूर चेक करो ये सोर्स रिलायबल होगा कि नहीं होगा. तो रिलायबल होगा, क्यों होगा? बिकॉज ही इज अ ब्रदर, हर ब्रदर, तो रिलायबल सोर्स है, ट्रस्टेड है. वाई ट्रस्टेड? फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ ब्रदर. सेकेंडली ही इज एन SUV एंथुजियास्ट, तो कोई और रैंडम बंदा नहीं है. ही इज SUV एंथुजियास्ट, सो ही नोज थिंग्स, ही नोज व्हाट ही इज स्पीकिंग. ठीक है, सो ही हैज एन आइडिया अबाउट द थिंग्स दैट ही इज स्पीकिंग, तो ही इज अ एक्सपर्ट ऑन दैट. एक्सपर्ट है सच, एंथुजियास्ट है तो इसको नॉलेज है, तो रिलायबल है, ट्रस्टेड है. एक्सपर्ट तो नहीं है बट ट्रस्टेड है और रिलायबल है, और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसके बारे में उसको जानकारी है. सो सेकंड वन इज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और स्पेसिफिकली उसी ब्रांड के बारे में इस इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसके बारे में शी इज कंसर्न. तो सेकंड इज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इसको होल्ड पे रखते हैं. थर्ड की बात करते हैं. इन जामपुर SUVs हैव अ 6 month वेटिंग पीरियड. हाउएवर वन रेड कलर्ड Diplomatico SUV, नॉट हर फेवरेट कलर, इज अवेलेबल एट Balaji Motors. So SUVs have a 6 month waiting period. Now go back to the question. Our question was whether buying Diplomatico SUV from Balaji Motors will be a right decision or not. यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जामपुर में SUVs का 6 month का वेटिंग पीरियड है. ठीक है, एंड वन रेड कलर Diplomatico SUV, नॉट हर फेवरेट कलर, इज अवेलेबल. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अवेलेबिलिटी की बात हो रही है. व्हाट इज अवेलेबल? ठीक, अवेलेबिलिटी की बात हो रही है. बट उसका डिसीजन क्या है कि वेदर बाइंग Diplomatico कार विल बी अ गुड डिसीजन, Diplomatico SUV विल बी अ गुड डिसीजन और नॉट. हमारा प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी थोड़ी है, हमारा प्रॉब्लम क्या है? सूटेबिलिटी है, कि जो हम चूज करने वाले हैं, जो हम परचेज करने वाले हैं, विल दैट बी अ राइट डिसीजन. ठीक है, सो दिस इज नॉट रेलेवेंट एज सच.
वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ पाओगे कि वाई दिस इज नॉट रेलेवेंट, बिकॉज यहाँ पे बात हो रहा है अवेलेबल होने का, कि 6 मंथ्स के बाद में एसयूवी अवेलेबल हो जाएगा, अभी नहीं है, कोई बात नहीं. इफ शी इज इन द फर्म डिसीजन इन द राइट माइंड कि यस शी हैज टू बाई अ डिप्लोमेटिक एसयूवी, देन शी कैन वेट फॉर 6 मंथ्स, नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, क्योंकि जो कलर उसको पसंद नहीं है वो कलर की कार तो नहीं परचेज करेगी, तो 6 मंथ्स शी कैन वेट. बट हर डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू बी कि वेदर शी हैज टू बाई अ डिप्लोमेटिक एसयूवी और सम अदर एसयूवी और सम अदर कार. तो दैट डिसीजन कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन थर्ड फैक्ट. ऐसा नहीं है कि 0% रेलेवेंस है इसका, बट दिस इज अबाउट अवेलेबिलिटी. और उसका कंसर्न है कि डिप्लोमेटिको को एसयूवी परचेज करनी है या कोई और एसयूवी परचेज करनी है या कोई और कार परचेज करनी है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है. ठीक है, ये तो तब की बात आती है कि जब हमें परचेज करना ही है एसयूवी, डिप्लोमेटिको एसयूवी परचेज करना है, 6 मंथ का वेटिंग पीरियड है. ठीक है, उसके बाद में देख लेंगे. तो डेफिनेटली नॉट द आंसर. ठीक है, शी वोंट बी एबल टू मेक अप हर माइंड फॉर श्योर कि डिप्लोमेटिक एसयूवी भी लेगी या कोई और एसयूवी लेगी. ओके, या कोई और कार लेगी. फोर्थ वन, जामपुर बीइंग एन ओल्ड सिटी विद कंजेस्टेड रोड्स हैज अ पार्किंग प्रॉब्लम. नाउ दिस इज हाईलाइटिंग पार्किंग प्रॉब्लम. नाउ डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न, बट नॉट सच हाई ऑन प्रायोरिटी. तो नॉट अ हाई प्रायोरिटी. पार्किंग कंसर्न इतना हाई प्रायोरिटी थोड़ी है कि उसकी वजह से डिसीजन होगा. ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर बिकॉज दिस इज नॉट द हाई प्रायोरिटी. फिफ्थ वन, अ न्यू डीलरशिप ऑफ पैंथर मोटर्स, द हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड इन द कंट्री, इज अबाउट टू कम टू द टाउन सून. ठीक है, सो इट इज सेइंग अबाउट अ न्यू डीलरशिप ऑफ पैंथर मोटर्स, द हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड, which will be going to coming to town sometime soon. Now her decision is whether buying a Diplomatico SUV will be a right decision. Now अब यहाँ पे एक हम नया वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, a new dimension, a new variable, new brand will be coming to town. ठीक है, बट क्या उससे उसका डिसीजन के बारे में हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि सही होगा या गलत होगा? कांट से दैट. तो एज सच दिस इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल. इन हर डिसीजन मेकिंग, बट स्टिल इंडिसीजन है तो इंडिसीजन ही तो रहेगा, बिकॉज शी इज नॉट अ बिग फैन ऑफ पैंथर मोटर्स. अगर बिग फैन ऑफ पैंथर मोटर्स होती तो बात अलग हो जाती, क्योंकि इसकी वजह से फर्क पड़ता, बट उतना फर्क पड़ेगा नहीं. सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द राइट आंसर. सो 2 शुड बी द करेक्ट आंसर. हर ब्रदर एन एसयूवी एंथुसियास्ट सेइंग दैट स्टे अवे फ्रॉम डिप्लोमेटिको कार्स. तो ये हमें बता रहा है कि शी शुड नॉट बी गोइंग विद डिप्लोमेटिको कार्स, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज हेल्पिंग हर मोस्ट इन टेकिंग द राइट डिसीजन. ठीक है, राइट डिसीजन अफर्मेटिव होगा निगेटिव होगा ये फर्क नहीं पड़ता, बट राइट डिसीजन लेने में हेल्प कौन सा इंफॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमंग द गिवन वंस. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. फर्स्ट का कोई सेंस नहीं बनता, इंडिसीजन का इंडिसीजन ही रहने वाला है. फोर्थ वन इज ऑल्सो पार्किंग प्रॉब्लम नॉट अ हाई प्रायोरिटी. तो अगर हमें टॉप 2 चूज करने होते तो 2 वर्सेस 5 होता, बट बिटवीन द टू इज द बेटर ऑप्शन. ओके, बिकॉज ऐसा नहीं कि शी हैज सम लव फॉर पैंथर मोटर्स और समथिंग लाइक दैट, तो देयर इज नो सच कंसर्न. तो बिटवीन 2 and 5 वी शुड चूज 2. सेकंड क्वेश्चन, Shyam's satisfaction from meeting the month's quota for selling SUVs turned to dismay when one of his young executives nervously told him that he mistakenly punched an extended warranty for free to Vinita's purchase contract earlier this morning. Satisfaction from meeting the month's quota. So Shyam का monthly quota fulfill हो गया है for selling SUVs, but it turned to dismay. Dismay यानी disappointment. Disappointment when one of his young executives nervously told him that he mistakenly punched an extended warranty for free. This could not be reversed, cannot be reversed from the company's system, and this meant a loss of rupees 19,000 for the dealership. The executive was very sorry and was ready to take accountability. However, the amount was too large to be borne by the executive. Shyam was not concerned about placing accountability. He was not concerned about placing accountability, but rather he was concerned about recovery of the loss. कि कैसे इस loss को recover कर ले. That was the concern of Shyam. He was unsure whether he should ask Vinita for the money. The following pieces of information are available to Shyam. So there are 5 pieces of information, but question पढ़ लेते हैं पहले. Question कह रहा है which of the following combinations of the above pieces of information will most likely stop Shyam from trying to recover the money from Vinita. तो which of the above pieces of information most likely stop Shyam from trying to recover the money from Vinita. ठीक है, तो क्या ऐसा रीजन हो सकते हैं which can stop Shyam from trying to recover the money from Vinita. अब उसका जो लॉस हुआ है 19,000 का, अगर ये लॉस रिकवर हो सकता है बिना रिकवरी के, तो वो चॉइस हमें चूज करना चाहिए. ठीक है, बिना रिकवरी के रिकवर हो जाए, कैसे रिकवर हो सकता है? सम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और समथिंग. ठीक है, या फ्यूचर में कोई ऐसा डिसीजन हो सके जिसकी वजह से कि ये लॉस रिकवर किए बिना समहाउ रिकवर हो जाए. ऑप्शंस को देखते हैं.
ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं और इन ऑल दीज ऑप्शंस 1 2 3 4 5 वी आर गेटिंग ए बी ए डी, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स हमें चूज करने हैं, 2 स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, श्याम इज अवेयर दैट विनीता इज वेरी हैप्पी विद द डील ही गेव हर फॉर द कार। तो विनीता इज वेरी हैप्पी, श्याम इज अवेयर अबाउट दैट, बट इफ शी इज हैप्पी डज नॉट मीन दैट ही विल नॉट रिकवर द लॉस। ठीक है, तो हर हैप्पीनेस, ठीक है, उसको दुखी नहीं करना चाहेगा, बट फिर भी क्या अपना पैसा छोड़ देगा उसकी वजह से? क्या ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन है? तो नॉट अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ठीक है, विल स्टिल रिकवर, विल स्टिल ट्राई टू रिकवर, बिल्कुल ट्राई करेगा उसके बाद भी। सो ए शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द आंसर। स्टिल एक बार कंसिडरेशन में रखेंगे, बट ए शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द आंसर इन जनरल। बी, श्याम feels that Diplomatico software system is complicated for new employees which might have also played a role in the error। तो Diplomatico सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर का जो इशू है, ठीक है, ये जस्टिफाई कर रहा है किसको? द एरर। तो एरर के पीछे का रीजनिंग दे रहा है, बट अल्टीमेटली हमें एरर के पीछे का रीजनिंग नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि रिकवरी ऑफ द लॉस श्याम करे या ना करे फ्रॉम विनीता। तो उसमें तो ये कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, तो बी इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। ठीक है, इररेलेवेंट फॉर द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, IRR इररेलेवेंट। ठीक है। सी, विनीता हैज अ वाइड नेटवर्क एंड कैन कनेक्ट श्याम विद मेनी पोटेंशियल कस्टमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, शी हैज अ वाइड नेटवर्क एंड कैन कनेक्ट श्याम विद मेनी पोटेंशियल कस्टमर्स। यानी कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि अभी आज 19,000 का लॉस हो गया है, बट फ्यूचर में यू कैन रिकवर इट इन सम अदर वे। तो दिस ऑप्शन सीम्स गुड, तो सी को होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, बी जहां पे भी आ रहा है उसको तो पहले ही हटा देते हैं। तो ए एंड बी यानी कि ऑप्शन 1 कैन नॉट बी द आंसर, बी एंड डी ऑप्शन 5 कैन नॉट बी द आंसर। सो बेसिकली ऑप्शन फिर हमें बच गए ए सी डी ई। ठीक है, और ए शुड ऑल्सो नॉट बी द आंसर, बट पहले बाकी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी, विनीताज ब्रदर अ कार एंथुसियास्ट हैज इनफ नॉलेज ऑफ हाउ कार डीलर्स ऑपरेट। सो ही हैज नो नॉलेज, नो हाउ ऑफ हाउ कार डीलर्स ऑपरेट। पर इससे फर्क क्या पड़ेगा, उसको तो लॉस की रिकवरी करनी है, और वहां पे कार डीलर्स कैसे ऑपरेट करते हैं इसका क्या कंसर्न है एज सच। ठीक है, सो नॉट वेरी रेलेवेंट एज सच। ठीक है, नॉट वेरी रेलेवेंट। ऑप्शन ई, श्याम फील्स दैट ही मेंटेन्स द करंट सेल्स वॉल्यूम एंड ही हैज ऑलरेडी met the monthly quota because it is mentioned, so this is also important information for selling SUVs। तो मंथली कोटा तो उसका मीट हो गया है, और श्याम feels that if he maintains the current sales volume he might be able to persuade Diplomatico to write off the amount। तो अगर अमाउंट राइट ऑफ ही हो गया तो फिर तो उसका रिकवर करने की जरूरत ही नहीं है, बिना रिकवर किए रिकवरी हो जाएगा। सो इफ ई इज देयर, अगर ई वाला ऑप्शन है तो ई वाले ऑप्शन की वजह से उसको फिर जरूरत ही नहीं है। और एडिशनली विनीता हैज अ वाइड नेटवर्क, तो एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी है। तो सी और ई मिला के एक डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है, सी एंड ई टुगेदर आर ए डेडली कॉम्बिनेशन। कंप्लीट जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ही शुड नॉट ट्राई टू रिकवर द मनी फ्रॉम विनीता बिकॉज विनीता कैन प्रोवाइड हर फ्यूचर कस्टमर्स एंड ही कैन स्टिल परसुएड डिप्लोमेटिको टू राइट ऑफ द लॉस और द अमाउंट 19,000 का। तो सी एंड डी शुड बी द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर सी और डी को तो मिलाने की सोचो तो सी और डी को मिला भी देंगे तो भी ही कैन नॉट बी श्योर कि अल्टीमेटली 9,000 राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये और बेटर ऑप्शन है बिटवीन डी एंड डी, ई ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इजंट इट सो? तो सी एंड डी इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन अमंग द गिवन वंस। सी एंड ई शुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 months passed while returning from a friend's house. Vinita's new SUV was hit by another car. Fortunately, she was not injured, but the SUV was badly damaged. Surprisingly, when Vinita took the car for repairs to Balaji Motors, she was told that the repairs would not cost her anything as the extended warranty on her car covered such accidents. Vinita could not recall purchasing such a warranty. Hence, she contacted Shyam. Shyam informed her that the extended warranty was mistakenly punched into her contract by an executive. As this mistake could not be reversed due to the company's rigid policies, Shyam bore the cost of rupees 19,000. He further added that Vinita should consider it as a gift from Balaji Motors. Should consider it as a gift from Balaji Motors for purchasing the highest priced Diplomatico SUV. As Vinita rode back home, she wondered if she should pay rupees 19,000 to Shyam since the extended warranty came to her aid that day. ठीक है, तो इस बार क्या है, विनीता का डाउट क्या है? She wondered if she should pay rupees 19,000 Shyam since the extended warranty came to her aid that day. तो उसको पे करना है नहीं पे करना है, ये डायलेमा है उसके दिमाग में। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंपेलिंग रैशनल यानी कि रीजनिंग जस्टिफिकेशन फॉर विनीता टू जस्टिफाई नॉट पेइंग रुपीज 19,000 टू श्याम। तो व्हाट कुड बी मोस्ट कंपेलिंग जस्टिफिकेशन? अब विनीता को जस्टिफिकेशन किसको देना है? अपने आप को देना है।
ठीक है, जस्टिफिकेशन फॉर हर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, शी डज नॉट हैव टू गिव दिस जस्टिफिकेशन टू श्याम बट जस्टिफिकेशन फॉर हर सेल्फ. First statement, she paid more for the diplomatic SUV compared to the price of a similar SUV from Panther. So even if she has paid more for something that she had purchased, is it the justification कि 19,000 जो extra है amount जो punch हो गया है उसके favor में ये उसको नहीं pay करना चाहिए? Will it be valid justification? Because we are comparing two different things. है कि नहीं? एक चीज जो उसने परचेज किया है हायर प्राइस पे खुद से परचेज किया है, अब साथ में एडिशनली बाई मिस्टेक 19,000 एक्स्ट्रा का एक एक्सटेंडेड वारंटी पंच हो गया है, तो क्या वो नहीं पे करना जस्टिफाई करेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट वोंट जस्टिफाई, ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी परचेज दैट एंड चोज दैट हाई प्राइस कार योरसेल्फ, तो दिस विल नॉट जस्टिफाई दैट एक्ट, ठीक है. सेकंड वन, शी इज अवेयर दैट फॉर एक्सपेंसिव एसयूवीज लाइक हर्स डीलर्स ऑफन ऑफर फ्री एक्सटेंडेड वारंटी. डीलर्स ऑफन ऑफर फ्री एक्सटेंडेड वारंटी, यानी कि ये जो एक्सटेंडेड वारंटी उसको मिला है ऐसा डीलर्स ऑफर करते रहते हैं. एंड इवन इन दिस केस, वन सेक, even in this case Shyam added further that Vinita should consider it as a gift from Balaji Motors, ठीक है, for purchasing the highest priced Diplomatico SUV. तो क्या ये सेम चीज यहां पे नहीं मेंशन है सेकंड ऑप्शन में? वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ो तो यही सेम लाइन तो घुमा फिरा के लिख दी है सेकंड ऑप्शन में. तो सेकंड ऑप्शन इज वेरी क्लोज टू व्हाट इन्फॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन कि शी शुड कंसिडर दिस एज अ गिफ्ट. और क्यों गिफ्ट दे रही है, क्यों गिफ्ट दे रहा है श्याम? बिकॉज ऑफ परचेजिंग द हाईएस्ट प्राइस्ड डिप्लोमेटिको एसयूवी. तो दिस प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन, ठीक है. बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं. ऑप्शन 3, द मिस्टेक हैपेंड 3 months बैक एंड इज वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, यानी कि पानी बह चुका है, ठीक है, तो काफी पानी बह चुका है उसके बाद से 3 months हो गए. बट क्या 3 months हो गए हैं तो क्या ये फैक्ट को चेंज करता है? दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट, ठीक है. तो अनचेंज, फैक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड कि जो गलती हुई है वो तो हुई है ना. भले ही 3 months हो चुके हैं बट 3 months इसलिए हो गया क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं था, आज तो पता चल गया ना. तो आज सिचुएशन बदल गया. 3 महीने पहले क्या था वो बात अलग की है, सिचुएशन चेंज हो गया, अब तो उसको पता है ना. नाउ शी इज अवेयर, ठीक है. सो नाउ शी हैड टू डिसाइड, शी हैज टू डिसाइड और जस्टिफाई फॉर हरसेल्फ. तो क्या ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई गलती हो गई तुम्हें आज पता चला, तो आज तो पता चला ना कि तुम गलती पे थे या तुम्हारे एंड पे एरर हुआ था, ठीक है. तो अब उसके बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली थर्ड विल नॉट बी द राइट जस्टिफिकेशन. 3 महीने पहले होता, 3 साल पहले होता, टाइम पीरियड की वजह से हम डिसाइड नहीं कर सकते. फोर्थ वन, हैड द एक्सीडेंट नॉट हैपेंड शी वुड नॉट हैव बीन अवेयर ऑफ द वारंटी. सेम लॉजिक फोर्थ वाले में भी है कि हैड द एक्सीडेंट नॉट हैपेंड, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या होता वो एक अलग की बात है, बट हो गया है एक्सीडेंट और अब हमको पता है, ठीक है. नहीं पता होता तो एक डिफरेंट चीज था, बट अभी नाउ शी नोज, एंड इफ शी नोज द फैक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड दैट शी हैज टू डिसाइड एज पर द नॉलेज, ठीक है. शी हैज टू डिसाइड एज पर द प्रेजेंट नॉलेज, और as per the present knowledge now she knows and she has to justify. So this will also not be the right answer. Fifth one, Shyam would have come back to her if he had needed the money. Now बहुत सारे लोग ये गलती करोगे कि सेकंड और फिफ्थ के बीच में फिफ्थ को चूज करोगे. ध्यान से पढ़ो फिफ्थ को. फिफ्थ क्या कह रहा है? Shyam would have come back to her if he had needed the money. बट अगर श्याम उसके पास आया नहीं तो डज दैट मीन दैट शी शुड नॉट गिव द मनी? थिंक अबाउट इट, ठीक है. कि श्याम को अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो क्या ये पैसा उसका नहीं होना चाहिए? आई मीन, ठीक है ना, नीड के हिसाब से थोड़ी डिसाइड करोगे. इफ ही डज नॉट नीड तो क्या कह सकते हो कि डज इट मीन दैट शी शुड नॉट पे? डज इट मीन सो? ठीक है. इफ ही डज नॉट नीड, लेट अस से कि उसको नहीं चाहिए, डज इट मीन दैट शी शुड नॉट पे? And also he never said that he does not need it. What he said is that it was mistakenly punched and mistake could not be reversed. So Shyam bore the cost. ठीक है. So between 2 and 5 better option कौन सा होगा? For most compelling rationale for justification for herself. Best justification क्या होगा कि विनीता ये सोचे कि जो उसको मिला वो डिजर्व करती थी, जो उसको मिला, जो उसको फ्री में मिल गया, that was well deserved because she purchased a high end car and with high end car dealers at times give extended warranty. तो बालाजी मोटर्स ने भी गिफ्ट दे दिया तो क्या हुआ? she deserved it. तो वो डिजर्व करती थी. this will be best justification for herself to not pay Shyam the amount. Isn't it so? क्योंकि justification किसको देना? खुद को देना, उसको किसी और को नहीं देना है. तो for her own justification second is the best option. Option number 2, that is the best option. That she is aware that
मेनी डीलर्स गिव सच ऑफर्स, तो मुझे ही मिल गया, दैट्स ऑल, आई ऑल्सो डिजर्व दैट, ठीक है. सो आई डोंट नीड टू पे श्याम ₹19,000, isn't it so? ठीक है. सो वी विल चूज ऑप्शन नंबर 2 एंड नॉट ऑप्शन नंबर 5, एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेट. एंड आई बिलीव कि जो मैंने डिस्कस किया वो समझ में आएगा. कहीं पे कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, तो मेक श्योर टू कमेंट आउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.